Hello friends, welcome to this presentation from Rising Pearl. हम हैं आपके होस्ट आपके दोस्त रॉय। आइए दोस्तों, आज हम एक ब्रांड न्यू सीरीज 4 शुरू करने जा रहे हैं जिसकी टॉपिक है linear equations in two variables. Now दोस्तों, so we are going to talk about linear equations in two variables in our series 4. आज हम शुरुआत करेंगे with a quick recap of equations in one variable. So before dosto we do the two variables, let us quickly find out, we'll do a quick recap of equations with one variable. ये है हमारे episode 1. Now दोस्तों, इसे हम part 1 कह रहे हैं because we want to actually break down the recap into two episodes. So आइए चलिए दोस्तों, let us quickly dive in. So what we want to learn today दोस्तों is this: what is a linear equation in one variable? Then how do we write a linear equation? उसके बाद third point is how we solve a linear equation. Fourth point will be what is the root of a linear equation. जब हम root बोलते हैं, what do we mean by a root of a linear equation? And finally, how do we represent the root graphically? Now दोस्तों, why we are going to say this is part 1 is आज इस presentation में we will focus on just these two parts कि linear equation in one variable क्या है and how we write linear equation, right? So इसे we will cover in this first part. And then how we solve linear equation, what is the root of linear equation and कैसे graphically represent करते हैं, इन्हें we will actually handle in our second part, which is our next webisode or next video. Now friends, again, like we said, this is a quick recap. हम आशा करते हैं you have covered these things in your last class. So चलिए दोस्तों, that's why what we are going to do is we will take some examples and we will quickly go through that just to refresh your memory. आइए देखते हैं now the first example. So मान लीजिए अगर आपको दिया जाता है कि sum of two numbers is 35, one number is 10 more than the other, find the two numbers. Now जब कभी आपको ऐसे करके sentence या word problems दिया जाता है दोस्तों, so you have to think कि आप एक detective हो, you are a जासूस, and you will look at all the information which is available, right? You are going to collect all the evidence which is available, you are going to make a case out of that and then you will solve that case. ठीक है? So हमें क्या दिया गया है? The first sentence says sum of two numbers is 35. So यहाँ पे basically there are two numbers which are involved here. ये है हमारी पहली नंबर and ये है हमारी सेकेंड नंबर. दो नंबर्स इन्वॉल्व है and उनकी सम is 35. ये है हमारी पहली कंडीशन, राइट? हमें मालूम नहीं है ये नंबर्स क्या है, बट हमें मालूम है there are two numbers involved, sum of two numbers. So ये पहली नंबर है, ये सेकेंड नंबर है and the sum is plus because it is a sum. दोनों की सम है 35. चलिए दोस्तों, now let us look at our second piece of evidence. One number is 10 more than other number. इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इन दोनों में से एक नंबर बड़ी है, एक नंबर छोटी है. They are not equal number because कहा जा रहा है कि जो पहली नंबर है और सेकेंड नंबर, एक नंबर is 10 more than other number. So चलिए, जो बिगर नंबर है basically, that number is actually 10 more than the smaller number plus 10. मतलब कि बेसिकली दोस्तों, दोनों नंबर्स में there is a relationship कि ये जो छोटी नंबर है उसमें आप अगर 10 जोड़ते हो you will get the bigger number, right? Now दोस्तों, हमें मालूम है जब कभी हम ऐसे क्वेश्चंस एनकाउंटर करते हैं, जब भी हमें अननोन होती है कुछ चीज जिसे हमें ढूंढनी है, we start out with assuming कि let that be x. बिकॉज वो एक वेरिएबल है जो हमें मालूम नहीं है उसकी वैल्यू क्या है. व्हेन वी स्टार्ट द प्रॉब्लम, वी अस्यूम कि दैट इज एक्स एंड देन वी वर्क टू सॉल्व द एक्स. सो इन दिस केस हम क्या करेंगे, अगर हम अस्यूम करते हैं कि हमारी जो छोटी नंबर है, इफ दैट इज एक्स, लेट अस अस्यूम द स्मॉल नंबर इज एक्स, देन जो बिगर नंबर है दैट इज एक्स प्लस 10, राइट? नाउ इफ यू पुट दिस इन योर फर्स्ट कंडीशन, यू विल नोटिस ये है हमारी छोटी नंबर, राइट? सो द स्मॉल नंबर इज x प्लस जो बिगर नंबर है, सो ये है स्मॉल नंबर x. अभी जो बिगर नंबर है दैट इज x प्लस 10, x प्लस 10 एंड दिस इज इक्वल टू 35. ना हमें मालूम है दोस्तों कि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज इन दिस इक्वेशन वी हैव अ वेरिएबल x, right? And we have a equality here. This is a equation. So अगर हम इसे solve करते हैं, we will find out x
एंड अगर हमें x मिलती है देन वी विल फाइंड आउट x प्लस 10 क्या है, विच इज द सेकेंड नंबर. नाउ दोस्तों, लाइक वी सेड एट द बिगिनिंग, हम अभी इस प्रेजेंटेशन में वी आर नॉट एक्चुअली सॉल्विंग द इक्वेशन, बट हम फोकस कर रहे हैं मोर ऑन व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन एंड हाउ वी राइट लीनियर इक्वेशंस. राइट, आइए ना चलिए दोस्तों, वी विल टेक अ सेकेंड एग्जाम्पल. नाउ ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है दोस्तों, यहां पे what is given is perimeter of a rectangle is 40 centimeter, the width of the rectangle is 8 centimeter, what is the length of the rectangle. ना आपको मालूम है दोस्तों कि बेसिकली अगर आप यहाँ पे छोटी सी एक रेक्टेंगल बना लेते हो आपके रफ स्पेस में, आपको मालूम है पेरीमीटर इज नथिंग बट ये जो आपकी लेंथ है एंड ये आपकी जो विड्थ है, राइट. सो अगर पेरीमीटर को आप P से लिखते हो, so P is equal to basically L plus W, length width plus length plus width, right. ये जो पूरी लेंथ है like this plus this plus this plus this, ये है पेरीमीटर. इसका मतलब that is 2 times the length plus 2 times the width. ये आपको मालूम है दोस्तों, that is what perimeter is about. Now अभी again like a detective we will find out कि what all is given and हमें क्या ढूंढनी है. हमें पेरीमीटर दी गई है is 40 and the width of the rectangle is 8. so हमें लेंथ ढूंढनी है. so ये लेंथ कितनी है, that is what we have to find out. and जो width है ये दी गई है, this is actually 8 centimeter. so again हम अपनी जासूसी हैट पहनते हैं. we will assume that length, let this be x, right. so अगर हमारी लेंथ x है एंड ये जो कंडीशन दी गई है पेरीमीटर, तो अभी देखते हैं दोस्तों व्हाट इज गिवन. सो अगर लेंथ x है, सो 2 टाइम्स लेंथ इज 2x प्लस 2 टाइम्स द विड्थ विच इज आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर. सो दिस विल गिव यू द पेरीमीटर, राइट, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स विड्थ इज इक्वल टू, आपको दी गई है पेरीमीटर इज एक्चुअली 40. सो ये है हमारी जो कंडीशन जो हमें दी गई है, दैट इज 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 40 विच इज द पेरीमीटर. सो दोस्तों अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, दिस इज अगेन अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वेरिएबल है आपकी x, राइट. उसे हम क्यों वेरिएबल कह रहे हैं दोस्तों, बिकॉज वी डोंट नो एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ x. सो बट अगर हम इसे सॉल्व करते हैं देन वी विल फाइंड आउट व्हाट x इज इक्वल टू एंड दैट विल बी आवर लेंथ, राइट. Now दोस्तों we will take our final example, which is our example 3 now. Now this is a very common type of question जो आती है दोस्तों, and you have to pay very close attention to this. Present age of Sagar's mother is 3 times the age of Sagar, right? So Sagar की जो mother है उनकी age is 3 times the current age of Sagar. Now 10 साल बाद 10 years from now sum of their ages will be 80. So find their current ages. So आपको मालूम है, चलिए बेसिकली व्हाट इज गिवन इज, सो ये है सागर एंड दिस इज सागर्स मॉम और सागर्स मदर, राइट. सो अभी हमें मालूम नहीं है सागर की एज कितनी है आज, बट सागर की जो एज है अभी, सागर की मदर शी इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सागर. ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन, राइट. हम लाइक अ डिटेक्टिव वी आर एक्चुअली गोइंग थ्रू ईच ऑफ द सेंटेंसेस इन द क्वेश्चन एंड हम वहां से वी आर लुकिंग एट ऑल द क्लूज विच आर गिवन, राइट, ऑल द एविडेंस विच इज आउट देयर एंड वी आर लुकिंग टू मेक आवर केस, वी आर लुकिंग टू बिल्ड आवर केस एंड उसके बाद हमें उसे सॉल्व करनी है, राइट. सो अभी हमें दी गई है कि प्रेजेंट एज ऑफ सागर्स मदर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ सागर. अगर सागर की एज है जो भी है हमें मालूम नहीं है, बट सागर की मदर शी इज 3 टाइम्स एज ओल्ड. अगर सागर अभी 2 साल का है, सागर की मदर इज 3 टाइम्स 2 दैट इज 6 years old. अगर सागर अभी इफ इज 10 years old, सागर की मदर इज 3 टाइम्स 10 विच इज 30 years old, राइट. सो दैट इज व्हाट वी नो एज द फर्स्ट कंडीशन. नाउ सेकंड कंडीशन है 10 साल बाद सम ऑफ देयर एजेस विल बी 80. सो 10 साल बाद दोस्तों, 10 साल बाद सागर विल बी, जो भी अभी एज है प्लस 10, राइट. क्योंकि अभी जो भी एज है, अगर अभी 5 साल का है सागर, 10 साल बाद ही विल बी 5 + 10 15 years old. सो सिमिलरली 10 साल बाद सागर की मदर विल बी
3x अगर ये अभी उनकी एज है करेंटली, सो 10 साल बाद शी विल बी दिस प्लस 10, राइट? नाउ जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि 10 साल बाद सम ऑफ देयर एजेस विल बी 80, सो फाइंड देयर करंट एजेस। सो एट दिस पॉइंट दोस्तों हम अस्यूम करते हैं कि सागर की एज है x, एंड वाई, बिकॉज आप देख रहे हो क्योंकि सागर की एज जो है उसकी मदर की एज डिपेंड्स ऑन सागर की एज, राइट? सो अगर सागर की एज x है, सागर की मदर इज 3x, राइट? सो 10 साल बाद सागर विल बी x प्लस 10 एंड सागर की मदर विल बी 3x प्लस 10। नाउ हमें यह दी गई है कि जो x प्लस 10 है 10 साल बाद जो सागर की एज है, प्लस उसकी जो मदर की एज होगी विच विल बी 3x प्लस 10, अगर आप इन दोनों एज को ऐड करते हो यू गेट 80, राइट? 80 ये है आपकी सेकेंड कंडीशन। नाउ दोस्तों दिस इज अगेन अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बिकॉज आपकी जो वेरिएबल है वो है x। सो अगर आप इसे सॉल्व करते हो यू विल फाइंड आउट x विच इज सागर की एज, एंड अगर आपको x की वैल्यू मिल जाती है यू विल नो हाउ ओल्ड इज सागर्स मदर। सो दोस्तों आपने देखा कि कैसे करके हम लीनियर इक्वेशंस लिखते हैं। जो कोई अननोन होती है हम उसे अस्यूम करते हैं x, then we look at the problem and then we build our case, and then we have to solve the case. We have to solve for the value of x, and then that is how we actually answer the questions, right? Now chaliye dosto, so we will just go through some of the things that we did learn right now. So अगर आपको सिंपली हम देते हैं x plus 4 is equal to 10, right? So when we say x plus 4 is equal to 10, this is a linear equation. Why we call it a linear equation? Well, first of all, this is a equation. Why? Because x जो है ये है हमारी variable, right? So whether it's a linear equation or not, we first see that x जो है that is a variable, correct? Then we notice that we have an equality sign, correct? Because you have seen दोस्तों कि आपकी जो चैप्टर जो सीरीज 2 थी जहां पे we talked about polynomials, we have seen कि algebraic expressions किसे कहते हैं, polynomial किसे कहते हैं, right? So we are noticing here that x plus 4 is your expression, and and because you have x as your variable, now the moment you put the equality condition, right, then that becomes your equation, correct? So जो हमारी variable होती है, correct? So if you have a expression, if you have an algebraic expression, in this case x plus 4 is your expression and 10 is your expression, जब आप algebraic expressions को if you equate it, आप equality sign add करते हो, then it becomes an equation. Now दोस्तों in our next webisode we will continue the recap of solving our linear equations. आज के लिए इतना ही, अगले वेबिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।